Welcome to all. I am Dr. Meena Tiwari, Assistant Professor of Mathematics, Applied Science Department, Sagar Institute of Research and Technology, Bhopal. I will teach you Engineering Mathematics 3 M3. Today, we will discuss the objectives, syllabus, reference book or referred book from university. So, the objectives. The objective of this course is to fulfill the needs of engineers to understand application of numerical analysis, transform calculus and statistical techniques in order to acquire mathematical knowledge and to solving wide range of practical problems appearing in different sections of science and engineering. कहा जाता है mathematics is the mother of all engineering subjects, which is true. Mathematical analysis for the innovation of anything is engineering. Mathematics is the natural numerical analysis, whereas the product of that we obtain from those are called to be engineering. For instance, we use integration when construction a bridge, which is mathematics, whereas to make those type of bridge possible and to get exit in extreme condition is engineering. Engineering and mathematics are like a bone and nerves of our body. Without one, another can't function. In other words, mathematics is a tool and engineer is a user. So, the objectives को कई छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिस्क्राइब किया गया है so that more precisely the objectives are to introduce effective mathematical tools for the numerical solution, algebraic and transcendental equations, solution of polynomials and transcendental equations. And another part, to enable young technocrats to acquire mathematical knowledge to understand Laplace transformation, inverse Laplace transformation and Fourier transformation, which are used in various branches of engineering. To acquaint the student with mathematical tools available in statistics needed in various fields of science and engineering. These are the objectives जो हमारे सिलेबस के according to these objectives सिलेबस को ड्राफ्ट किया गया है. So, the syllabus of this subjects को 5 पार्ट में यूनिट बोल लीजिए या इसको आप मॉड्यूल बोल लीजिएगा 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो एज पर यूनिवर्सिटी यहाँ पर इसको मॉड्यूल नाम दिया गया है. सो द फर्स्ट मॉड्यूल इज मॉड्यूल 1 न्यूमेरिकल मेथड. न्यूमेरिकल नाम से ही समझ में आता है न्यूमेरिकल मेथड इज द सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस. पॉलिनोमियल्स एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस की 3 ही मेथड है जो आपके इस मॉड्यूल में है. एक है बाइसेक्शन, सेकेंड वन इज न्यूटन-रैप्सन, थर्ड वन इज रेगुलर-पेल्सी मेथड. न्यूमेरिकल मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में बहुत यूजफुल होती है. बेसिकली ऑपरेशनल रिसर्च में बिल्डिंग मॉडल्स बेस्ड ऑन डेटा, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, सम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, mechanical engineering subjects such as heat transfer, vibrations and finite element methods. So these are some topics. Basically कई topics ऐसे हैं जो जिनके हमारे पास practical problem होते हैं और जिन्हें हमें solve करना बहुत difficult हो जाता है. So by these methods we can solve it very easily. बहुत आसानी से हम solve कर सकते हैं. So ये बहुत important और बहुत useful topic है in every branch of engineering. So next is finite differences. Basically finite differences को निकालने के लिए operators बनाए गए हैं. तो finite differences and relation between operators. Okay. Operator based interpolation. Interpolation जो topic है वो operator पे ही based. Next is interpolation using Newton forward, backward difference formula. Up Newton forward and backward difference formulae for interpolation. These are for equal interpolation.
फिर इंटरपोलेशन व्हेन द इंटरवल इज अनइक्वल, interpolation with unequal intervals, which is Newton divide distance formula and Lagrange's formula. So this is your first model. The next, again, numerical method. न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. अभी मैंने प्रीवियस आपको एक छोटा सा ब्रिज का एग्जांपल जो दिया, दैट इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. हमें किसी पार्ट का किसी आपको ऐसा पार्ट है जिसका एरिया फाइंड आउट करना है और वो पार्ट आपका अनइवन है, लाइक उस पार्ट को हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं इजीली, उस पार्ट को 8 में डिवाइड कर सकते हैं इजीली, उस पार्ट को 6 में डिवाइड कर सकते हैं इजीली. तो अगर हम इस तरह के पार्ट को 3, 4, 6 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसका इजीली इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल का यूज करते हैं. ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन 1/3 रूल और 3/8 रूल, which is very useful topic in civil branch. Civil branch में इसका बहुत यूज होता है, खासकर इंटीग्रेशन के लिए. आपको बड़े बड़े ऐसे ओपन स्पेस दिखते हैं जहां पर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उन कंस्ट्रक्शन को करने के लिए पहले हमको उसको एरिया फाइंड आउट करना होता है. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर जगह आपको रेक्टेंगुलर मिले या ही हर जगह आपको स्क्वायर मिले या आपको सर्कल का फॉर्म मिले. तो हमेशा एरिया अलग अलग शेप में होते हैं, उन शेप के स्पेस आपका अलग अलग शेप में होते हैं, उस शेप का एरिया को फाइंड आउट करने के लिए इस तरह की मेथड का बहुत यूज होता है. नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, क्राउट्स मेथड, जैकोबी, गॉस सीडल एंड रिलैक्सेशन मेथड. समटाइम्स मैकेनिकल के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पर हमारे पास एक या एक से ज्यादा अलजेब्रिक इक्वेशंस आ जाती हैं. उन अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इजीली नॉर्मल जो मेथड्स होती हैं जो हम पढ़ते आए हैं उनसे हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं. इन अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इस तरह की कई मेथड्स हैं, जैसे क्राउट्स है, सीडल है, जैकोबीज है. इनके थ्रू हम जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं जो नंबर्स में रहती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इन मेथड्स को यूज किया जाता है. Which is very important and very useful. Now next module is again numerical method for differential equations, ordinary differential equations, Taylor series, second order equations, Miller's predictor and corrector methods, Euler's method, Runge-Kutcher method. These are oldest, काफी पुरानी method है. जब हम किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को रूटीन नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हम न्यूमेरिकल मेथड का यूज करते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, बहुत आसान होती है. आपको लगता है कि हम न्यूमेरिकल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, बट इट इज वेरी इजी एंड बहुत यूजफुल होती है. खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के कुछ इस तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो वो एक न्यूमेरिकल मेथड है. और अभी आप एक मॉड्यूल 4 पढ़ेंगे जहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वहां भी इसका काफी यूज होता है. नाउ नेक्स्ट इज फाइनाइट डिफरेंस सॉल्यूशन, two-dimensional Laplace equation and Poisson equation, implicit and explicit method for one-dimensional heat equation, finite difference split method for wave equation. Heat equation and wave equation is one of the important and very useful topics and very important topics, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में काफी यूज होता है. इन इक्वेशंस के थ्रू हम कई तरीके के बड़े बड़े प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट मॉड्यूल 4, ट्रांसफॉर्म कैलकुलस. ट्रांसफॉर्म वर्ड से समझ में आता है ट्रांसफॉर्म करना, कन्वर्ट करना. जब कोई एक फंक्शन हमारा किसी वेरिएबल्स के थ्रू सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम उसको दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं. इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म कैलकुलस. ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके जो मॉड्यूल 4 में है, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, Laplace transformation of periodic function, inverse Laplace transformation by different method, convolution theorem, evaluation of integral by Laplace transformation by solving ordinary differential equation by Laplace transformation, and also Fourier transformation. So there are two types of transformation. ये transformation basically आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होता है. जब हम उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिक के कुछ वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने होते हैं या किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, तब
आपको ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलस का या ट्रांसफॉर्म कैलकुलस का यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इसका काफी यूज होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। एल्गोरिथम में भी काफी यूज होता है। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का काफी यूज आपका एल्गोरिथम में होता है, डेटा एनालिसिस में काफी यूज होता है। So this is a very important topic and very useful. The last one is your concept of probability. Probability mass function, probability density function, discrete distribution, binomial, Bayesian, continuous and normal distribution and exponential distribution. Probability तो हमेशा से ही हर जगह यूज होती है, which is very important, highly used in data analysis, machine algorithms, data modeling, and which is integral part of statistics. So these are your 5 modules which is based on objectives, जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पहले डिस्कस किए, और ये आपके 5 मॉड्यूल्स हैं या 5 यूनिट ऑफ योर सिलेबस। कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इरविन क्रेजे, BS ग्रेवाल, जो हम अपने स्टूडेंट लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बाली की बुक है, PG फेल की ग्रुप है, एस रोज फेल, बहुत अच्छी बुक्स हैं जो आप देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। नाउ नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यूमेरिकल मेथड शुरू करेंगे। थैंक यू।